शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। शुरुआत मॉनसून महासंग्राम के साथ और लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो गई है। सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। Honorable members, so many members have given notice of adjournments. The Honorable Speaker has disallowed those applications for adjournment notices. Hence, let us resume the business. Item number 2. Yeah, but the Honorable Speaker has disallowed all the adjournment motion notices. So, purpose to be laid on the table. Item number 2, Dr. Jitendra Singh Ji. Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 2 in today's revised list of business. Thank you, Speaker, sir. Thank you. Item number 3, Sri Jiten Prasad Ji. महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। Item number 4, Dr. P. Chandrasekhar. Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 4 in today's revised list of business. Thank you. Item number 5, Sri B.L. Verma Ji. महोदय, मैं आपकी अनुमति से और लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर अपने नाम के अंकित प्रपत्र सभा पटल पर रखता हूं। Item number 6, Sri Sadish Chandra Dubey. Item number 6, Sri Sadish Chandra Dubey. माननीय महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 6 पर उल्लेखित कागजातों को सभा पटल पर रखता हूं। Item number 7, Sri Bilplab Kumar Dev. Sir, I rise to lay See, on the table the Minister, Hindi and English version Minister, of the third sitting Minister of for State is there. He is already there in the House. I rise to lay on the table on the minutes Hindi and English version of the third sitting Next. of the Committee of Absence members from the sitting. Item number The House is 8. listed Honorable Chairman, sir, with your permission, I rise to present the 27th report, Hindi and English version of the Standing Committee of Coal, Mines and Steel as listed against my name in today's revised list of business. Item number 9, Dr. Jitendra Singh Ji. Speaker, sir, with your kind permission, I rise to make the following statement on the floor of the House. The status of implementation of recommendations contained in the 409th report of the Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forests and Climate Change on demands of Grant 2026-27, demand number 89 pertaining to Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology. Item number The status 10. of implementation of recommendations contained in the 411th report of the Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forests and Climate Change on demands for Grant 26-27, demand number 24 pertaining to the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology. Thank you. Item number 10, Dr. L. Murugan. तो लोकसभा की कार्यवाही चल रही है। राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। एक बार फिर से रुख करेंगे लोकसभा का, लेकिन सीपीएम दफ्तर में पुलिस के घुसने को लेकर आज राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ। पूरे मामले को सीपीएम ने उठाया और कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा। खबर यह कि सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास ने राज्यसभा में ये मामला उठाया। सीपीएम की तरफ से इस मामले को हवा दी गई। दिल्ली पुलिस सीपीएम के दफ्तर में घुसी थी, ऐसा जॉन ब्रिटास की तरफ से कहा गया। आयशी घोष को गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची थी। साल 2021 का मामला, 2021 के एक मामले में गिरफ्तारी को लेकर पुलिस गई थी, तो ये मुद्दा उठाया गया। Yesterday, Delhi police team barged into AKG Bhavan. You have huge respect. You have told many a time respect for AK Gopalan. Sir, it was to arrest Aishi Ghosh, Madam Nirmala ji, who is a former JNU Students Union president. Her only mistake was that she participated in Jantar Mandar agitation. Leave it, sir. Sir, I happen to be there, sir. I want your indulgence. Jaishankar ji, you also should. I happened to go there. I asked the Delhi police team,
Why did you barge into the office of a national political party? Then they said they want to arrest Aishi Ghosh, who is here. And I asked, what is the reason? They said there is a case pending against her. And I asked about the case. 2021 case with regard to certain protest in JNU campus. और कांग्रेस ने भी सीपीएम दफ्तर में पुलिस का मुद्दा उठाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा लोकतंत्र आज सुरक्षित नहीं है। इसी मुद्दे को उठाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की तरफ से मुद्दा उठाया गया। कहा लोकतंत्र आज सुरक्षित नहीं है। एक राष्ट्रीय पार्टी के दफ्तर में सीबीआई घुसी। खड़गे को जेपी नड्डा ने इस पर जवाब दिया। कांग्रेस सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी, ये बात याद दिलाई। कांग्रेस सरकार में बदतर दिन देखे हैं। तो दिल्ली पुलिस के एक्शन पर राज्यसभा में कैसे कांग्रेस और बीजेपी में संग्राम हुआ, सुनिए। बेटा ने यहाँ पर उठाया मुद्दा, ये बहुत शर्मनाक है कि एक नेशनल पार्टी के ऑफिस में हम घुस के अगर सीबीआई के लोग घुस के जाते हैं, उसको अरेस्ट करने की बात करते हैं। डेमोक्रेसी इज नॉट सेफ, people are not safe. Therefore, I request you, people who have gone there unauthorized, they should be punished. Why they have gone? Who are they? Who ordered them? You ask your people to sit in there. No, I am asking. Who asked them to go there? I have been arrested. I have been arrested. Mr. John Bittas, it is a normal situation. A student activist has to pay. और एक बार फिर से रुक करते हैं लोकसभा की कार्यवाही का। नो प्लीज, और को लोगों को बोलने दें आप, प्लीज डिबेट शुरू करने दें। डिबेट शुरू करो, आपने जो डिबेट शुरू करो, प्लीज प्लीज। Speaker sir, yes. Speaker sir, I wish to move that this House do extend time for the presentation of the report of the Joint Committee on the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024 up to the first day of the last week of the winter session 2026. प्रश्न है कि श्री पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, हाँ। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब दिलेश्वर कामत जी हैं, एक मिनट रुकिए, पर एक ले लें। आइटम नंबर 14 नित्यानंद राय। मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 का संशोधन करने के लिए विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। चलिए मनीष तिवारी के वाह काव्य, चलिए आगे बढ़े, ठीक है। लोक परीक्षा प्रश्न ये कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक प्रस्तावित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक प्रस्तावित करता हूँ। माननीय सदस्यगण, जिन्हें नियम 377 के तहत आज मामले उठाने की अनुमति दी है, वो व्यक्तिगत रूप से अनुमोदित पाठ सदन के पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 16 लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, श्री दिलेश्वर कामत। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। साथ ही इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विद्यार्थियों एवं युवाओं के उज्जवल भविष्य हेतु शिक्षा स्थिति को मजबूत एवं गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाने के साथ
तकनीकी शिक्षा क्षेत्रों की अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए सार्थक रूप से इस विधेयक को लाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी राष्ट्र हित के सार्थक नीतियों से प्रेरित शैक्षणिक क्षेत्रों को मजबूत बनाकर विकसित भारत बनाने के लिए महत्वपूर्ण लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन कर भारत के भविष्य को संवारने का कार्य किया है। इस फैसले से देश के युवाओं को एनडीए सरकार के प्रति उम्मीद और दृढ़ विश्वास जागृत हुआ है। महोदय, मैं भारत के करोड़ों विद्यार्थियों के हित में उनके बड़े बड़े सपनों को साकार करने के लिए सदन में अपना पक्ष रख रहा हूँ। यह विधेयक भारत के गरीब, किसान, मजदूर, मध्यवर्गीय करोड़ों परिवार के मेहनत का फल तथा युवाओं एवं बच्चों के भविष्य का सपना पूरा करने वाला विधेयक है। महोदय, पेपर लीक करने वाले पापियों का संहार करने के लिए सुदर्शन चक्र की तरह लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 लाया गया है। महोदय, नए संशोधन विधेयक में पेपर लीक या नकल गिरोह में शामिल व्यक्तियों को दंडित करने के लिए मुख्य आवश्यक बदलावों का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें तय समय में जांच, तेजी से सुनवाई, कड़ी सजा और मजबूत सिस्टम बनाने का प्रावधान शामिल है। एक अहम प्रावधान के तहत राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को यह अधिकार देने का प्रस्ताव है कि वे इस कानून के तरह अपराधों की सुनवाई के लिए किसी भी सेशन जज को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के तौर पर नामित कर सके। यह प्रस्ताव है कि केंद्र सरकार को जरूरत पड़ने पर इस कानून के तहत अपराधों की जांच के लिए एसटीएफ बनाने का अधिकार दिया गया है। साथ ही सेक्शन 10 के सबसेक्शन 1 में पेपर लीक करने या नकल गिरोह में शामिल व्यक्तियों को 3 से 5 वर्ष कारावास एवं 10 लाख रुपये जुर्माना की जगह 5 से 10 वर्ष कारावास एवं 50 लाख रुपया जुर्माना का प्रावधान है। सबसेक्शन 2 में परीक्षा आयोजित करने वाली बाहरी कंपनियां या सर्विस प्रोवाइडर्स की संलिप्तता होने पर 4 वर्ष कारावास एवं 1 करोड़ जुर्माना की जगह 8 वर्ष कारावास एवं 5 करोड़ रुपये जुर्माना है। सबसेक्शन 3 में 3 वर्ष कारावास और 1 करोड़ रुपये जुर्माना के जगह 5 वर्ष कारावास और 5 करोड़ जुर्माने का प्रावधान है। सेक्शन 11 के सबसेक्शन 1 में कोई संगठित गिरोह या कोचिंग संस्थान शामिल किए जाते हैं तो 5 वर्ष कारावास और 1 करोड़ जुर्माने की जगह 7 वर्ष कारावास और 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान है। नई धारा 12 की उपधारा 1A और B जोड़ी गई है, जिसके तहत फास्ट इन्वेस्टिगेशन एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था है, जिसमें जांच एजेंसी को 2 माह के भीतर जांच पूरा करना है और चार्जशीट दाखिल करना है और फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रतिदिन सुनवाई कर चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर सुनवाई पूरी कर लेनी है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पेपर लीक पर श्री नंदन नीलेकनी जी का अध्यक्षता में 100 सदस्यीय हाई पावर टास्क फोर्स गठित करने का ऐलान किया है, जो प्रौद्योगिक आधारित परीक्षा प्रणाली और संरचनात्मक सुधारों पर कार्य करेगी। सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी एवं प्रगतिशील आर्थिक नीतियाँ एवं योजनाओं से समाज के अंतिम व्यक्ति के साथ सभी वर्गों को समानांतर एवं सार्थक लाभान्वित करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र द्वारा संरचनात्मक एवं योजनाबद्ध तरीके से परिवर्तन की शुरुआत कर शिक्षा हित, युवा हित, विद्यार्थी हित, आर्थिक हित तथा लोकहित में शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता के अधिक से अधिक अवसर प्रदान कर भारतीय शैक्षणिक संस्था को सुदृढ़ करने का काम किया है। प्रहलाद जोशी पर अपने बयान पर कायम है प्रियंका गांधी। मेरा बयान असंसदीय नहीं है, प्रियंका गांधी ने कहा। प्रियंका ने मैंगलोर पब में महिला पर हमले का भी जिक्र किया। महिला विरोधी को प्रहलाद जोशी ने बीजेपी में शामिल कराया। प्रहलाद जोशी का महिला विरोधी रुख सब जानते हैं, ये प्रियंका गांधी ने कहा। सच बोलने की सजा देनी है तो दे, मैं अपने बयान पर कायम हूं, प्रियंका गांधी ने कहा। क्या कहा सुनिए। उसमें अनपार्लियामेंट्री क्या था? उसमें तो सच्चाई थी बस। तो सच्चाई के लिए अगर वो सजा देना चाहते हो दे, मैं तो सच बोलूंगी। पूरे वीडियोस हैं और सिर्फ ये नहीं, एक वो मैंगलोर में जो पिटाई हुई थी लड़कियों की पब में,
उस आदमी को बीजेपी में किसने ज्वाइन कराया? प्रहलाद जोशी जी ने। उसके बाद 5 घंटे बाद या जो भी है उनको निकाला, लेकिन ज्वाइन कराने की फोटो भी है उनकी। तो उनका एक इंसिडेंट नहीं है ना, उनकी एटीट्यूड है महिलाओं के प्रति, उनकी एटीट्यूड है। कार्रवाई से हटा दिया गया क्या? कौन सी कार्रवाई? मैंने तो सच ही। तो प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे। नए शिक्षा मंत्री पर तकरार देखने को मिल रही है। प्रियंका गांधी ने प्रहलाद जोशी को महिला विरोधी बताया, बलात्कारियों के समर्थक को शिक्षा मंत्री बनाया, ये प्रियंका गांधी ने कहा। बिल्किस बानो मामले का जिक्र कर सवाल खड़े किए। बीजेपी सांसदों ने प्रियंका के बयान का विरोध किया। प्रहलाद जोशी ने आरोपों को पूरी तरह से झूठ बताया, सबूत दें या माफी मांगे। प्रियंका गांधी, ऐसा प्रहलाद जोशी की तरफ से कहा गया। विवाद के बाद भी प्रियंका अपने बयान पर कायम है, जिसे आप सुन रहे थे। आज प्रियंका गांधी ने यह बात दोहराई। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ सच कहा और मैं अपने बयान पर कायम हूं। तो लगातार लोकसभा में चर्चा हो रही है और इस बीच विपक्ष का हंगामा भी देखने को मिल रहा है। कल लोकसभा में कार्यवाही के दौरान दरअसल प्रियंका गांधी ने गोमूत्र एक्सपर्ट वाले बयान पर हंगामा हो गया। उन्होंने जब ये बयान दिया उसके बाद हंगामा देखने को मिला। अनुराग ठाकुर ने कहा प्रियंका गांधी ने एक वैज्ञानिक का उपहास उड़ाया है, जो कांग्रेस पहले से करती आई है। सुनिए। इस नई कमेटी में तो एक एक्स-आईबी चीफ, अरे बात फिर चिल्लाएंगे, एक एक्स-आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। तो सच है क्या? इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? सच है। गौमूत्र के विशेषज्ञ। तो गांधी परिवार की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो भारत की परंपराओं को ना तो समझते हैं और ना ही समझने का प्रयास करते हैं, बल्कि उनका उपहास उड़ाते हैं। जिन पर दुनिया शोध कर रही है, कांग्रेस उन पर तंज कस रही है। देश के प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस साइंटिस्ट जो भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन करना चाह रहे हैं, कांग्रेस उनका मजाक उड़ाती है। ये हमारी संस्कृति, हमारे समाज और हमारे साइंटिस्ट के साथ सदा कांग्रेस यही करती रही। तो उनको लगा कि हम 490, 500 के लगभग मार्क ले आएंगे। जब दूसरे बार एग्जाम दिया बच्चा तो उनको 290 डिप्रेस में चले गए। लगभग 26 बच्चों की शहादत के बाद और इतने बड़े जेएनजी के क्रांति के बाद कितने लोग डेथ किए, उनकी शहादत के बाद 1 लाख से ज्यादा बच्चे डिप्रेसमेंट में चले गए, डिप्रेशन में चले गए। उसकी चर्चा इस भारत में नहीं है कि जो पहली बार 500 मार्क्स लाते और दूसरी बार 296। पहले बार जो क्वेश्चन था वो ब्रॉड था और दूसरे बार जो क्वेश्चन आया वो सेलेक्टेड कर दिया गया। मैं जानना चाहता हूं इस सरकार से 6 से 8 करोड़ फॉर्म क्यों भराया जाता है? ये पैसा एनटीए को क्यों दिया जाता है? ये इसमें किसकी किसकी हिस्सेदारी है? दूसरी बात कि ये कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, इन्वेस्टिगेशन को तय कौन करेगा? सीबीआई ने 5 बेईमान और चोर को, जैसे संजय मुखिया को जिसने सबसे बड़ी चोरी की बिहार में क्वेश्चन रिकॉर्ड में, उसको बड़ी कर दिया। आप कह रहे हो एसआईटी, तो एसआईटी कौन बनाएगा? एसआईटी बनाएंगी सरकार। स्टेट के अधिकार को छीन लिया गया। हमारा उसमें आपसे रिक्वेस्ट है कि जो पेपर लीक मामला है, ये पेपर लीक से नहीं है। आप इसको इस रूप में मत देखिए, इसके टर्नओवर को देखिए। इसके 2026 में है छोटे वेंडरों के लिए 5 से 10 साल की सजा। आपने एनटीए के बारे में कुछ नहीं कहा। एसटीएफ बनाएंगे सत्ताधारी। आप 25 लाख बच्चे जो टारगेटेड हुए, उसमें भारत को अमेरिका के तर्ज पर एसएटी जीआरई मॉडल के साथ सर अभी शुरू किए सर। नहीं कंप्यूटर बेस्ड एडोपेटिक टेस्टिंग लागू करनी चाहिए रियल टाइम के अनुसार। कोरिया सोगनम मॉडल अपनाना चाहिए, जहां पेपर सेट करने वाले सैकड़ों प्रोफेसर
परीक्षा से 1 महीने पहले गुप्त स्थान पर कड़ी सुरक्षा में पूरी तरह आइसोलेट कैद कर दिया जाता है। चीन के गुआको एग्जाम की तरह भारत में भी कैंडिडेट्स को पकड़ने के लिए आधार लिंकेड फेशियल रिकॉग्निशन अनिवार्य होना चाहिए। चीन के ही तर्ज पर चीटिंग करने वाले उम्मीदवार को माफियाओं के नाम डेटाबेस में डालकर आजीवन सरकारी नौकरी सुविधा और ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए। फिनलैंड अभी थी सिस्टम से सीख लेना चाहिए कि इंटरनेट वाले क्लोज लोकल एयर गैप पर होती है, जिससे बाहरी हैकिंग या डाटा ब्रीच कोई गुंजाइश। जापान में 2021 में कॉमन टेस्ट रिफॉर्म के तहत परीक्षा रूट लर्निंग के साथ करना चाहिए। ब्रिटेन जोफाल के तर्ज पर भारत की एक स्वतंत्र नेशनल एग्जामिनेशन रेगुलेटरी बोर्ड हो जिसमें कोई सरकार का इंटरफेरेंस नहीं हो। एनटीए प्राइवेट वेंडर्स को तकनीकी और सुरक्षा ऑडिट करे। मैं बता रहा हूं अध्यक्ष जी, सिंगापुर के तरह डिजिटल चेन ऑफ कस्टडी ब्लॉकचेन तकनीकी इस्तेमाल हो। एग्जाम सेंटर तक पूरी तरह एनक्रिप्टेड रहे। एक ये रिक्वेस्ट है, प्राइवेट सेंटर जैसे अध्यक्ष जी प्लीज स्कूल इंजीनियरिंग कॉलेज पर परीक्षा करवाना आउटसोर्सिंग तुरंत बंद करिए। आउटसोर्सिंग थर्ड पार्टी गलत है। बिना फुल प्रूफ के श्री सोला सिंह जी, श्री सोला सिंह, सॉरी बोला सिंह, जुर्माना नहीं। श्री बोला सिंह, एक माफिया कमेटी है। मैं आपसे 1 मिनट में रिक्वेस्ट करूंगा। प्लीज कंक्लूड करो, प्लीज कंक्लूड कर रहा हूं सर। मेरा रिक्वेस्ट है, धन्यवाद सभापति। एक सेकंड। अरे सर, मेरा रिक्वेस्ट इसमें यह है कि बच्चों की सुरक्षा पर कोई चर्चा नहीं। एनटीए के ऑडिट, आरटीआई और उसको बर्खास्त करने की कोई चर्चा नहीं। आपने एक ऐसा कानून लाया जो माफिया और सरकार को बचाती है। धन्यवाद। शुरू करो। धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पे मैं सर्वप्रथम गुरुओं के चरणों में नमन करता हूं और सभी देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभापति महोदय, लोक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण संशोधन विधेयक 2026 के समर्थन में मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपका आभार करता हूं और अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार करता हूं। सभापति महोदय, मैं कल से सभी माननीय पक्ष और विपक्ष के साथियों की स्पीच सुन रहा था और बहुत सारे विषय निकल के आए। लोगों ने आरोप भी लगाए सरकार पे और हमारे एक साथियों ने जवाब भी दिया। सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में बढ़ते आगे विपक्ष के हंगामे पर स्पीकर की चेतावनी, हंगामा किया तो रोक देंगे सदन। ये स्पीकर की तरफ से चेतावनी दी गई है। लगातार हंगामा हो रहा है और इसी को लेकर ये चेतावनी दी गई है। हंगामा किया तो सदन रोक देंगे। आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं? टाइम